वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 कवर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज दैट इन द फिगर 9.25 द डायगोनल AC and BD is of the quadrilateral ABCD, जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, intersect at point O such that OB is equal to OD. If AB and CD are equal, this side and this side are equal, then show that the DOC, the red triangle, the DOC, the red triangle is equal to the green triangle AOB. सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है। हम फर्स्ट टास्क की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। The solution we are proceeding towards, the solution is, सबसे पहले हम इसके हिंट का हेल्प लेते हैं कि from the D and from the B draw the perpendicular, right? So from the D we are going to draw the perpendicular, and from the B we are going to draw perpendicular, right? So this perpendicular we are going to take the name N, and this name is M, right? So सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमने ड्रॉ किया है DN को, परपेंडिकुलर है जो कि AC के, राइट? एंड यहाँ हमने ड्रॉ किया है BM को, जो कि अगेन परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक है? नाउ व्हाट वी वांट टू prove here, we want to prove the concurrency between DON triangle and BOM triangle. इन दोनों ट्राइंगल के बीच में हम कंकरेंसी प्रूव करेंगे। तो इन द ट्राइंगल DON and the triangle BOM, इन दोनों ट्राइंगल्स में कंकरेंसी प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम 90 डिग्री एंगल जो दोनों में अवेलेबल हो गया है, दिस वन एंड दिस वन, इसको बेस लेते हैं। तो डी एन ओ जो ट्राइंगल है दैट इज इक्वल टू द बी ओ एम, इट इज बी एम ओ, एंगल एट ओ, राइट? तो ईच इज ऑफ 90 डिग्री, दोनों एंगल हैं वो 90 डिग्री के, ठीक है? दिस इज नॉट 90 डिग्री एंगल, so I want to say perpendicular is a 90 degree, right? So another is angle at O, DON, and angle at OBOM is vertical opposite angle, is vertical opposite angle. So that's why they are equal. And the side OB is equal to OD. It is given. OB is equal to, that is OD. On this side we are writing for this triangle, so we are writing like, right? So that is given. ऐसे हम लिख सकते हैं। और ये क्या बना? एंगल, एंगल एंड साइड, राइट? So this criteria is AAS criteria of congruence, right? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, so that makes the triangle DON is equivalent to the BOM triangle. तो ये कंकरेंसी प्रूव जो हमने की, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारे पास जो इनकी साइड्स है ट्राइंगल्स की, वो ट्राइंगल्स की साइड भी इक्वल हो गई। तो हम लिख सकते हैं इसमें DN इज इक्वल टू BM, राइट? तो क्या बोलते हैं इसको? कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स
of congruent triangles are, so that's how we can write. तो इसको हम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन. राइट नाउ we are going to proceed to the another side of the triangle. जो हमारे पास triangle बचा, that is DCN triangle. We are going to represent this DCN with black and bold. So we are writing here DCN. ये ट्राइंगल का हमारे पास पोर्शन बचा और दूसरी ट्राइंगल क्या बची यहाँ पर BAM. तो ये दोनों ब्लैक ट्राइंगल्स हैं. ये दोनों ब्लैक ट्राइंगल्स हमें कंग्रेंट प्रूव करनी है यहाँ पर. So we are writing for the triangle DCN, this triangle, and the triangle BAM. दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं. तो जो हमारे पास एंगल बचा ये वाला N पे एंगल बन रहा है और यहाँ M पे बन रहा है एंगल, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए. तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल DNC is equal to angle BMA. Why? Because each 90 degree. Right? So another, this DC side is equal to AB side, it is given. So this DC side is equal to AB side and it is given. Right? Last, from the equation number 1, so from first equation we can write the DN is equal to BM. तो ये क्या बना हमारे पास RHS क्राइटेरिया. तो हम यहाँ इसको लिखेंगे the triangle DCN is equivalent to the triangle BAM और यहाँ लिखेंगे by RHS criteria of congruence. राइट? तो हम इसको ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं. तो proceeding further we can write, say this is our equation 2, right, and this is our equation 3 जब हमने दोनों को congruence प्रूव किया था. So we can write from the equation 3 and 2 what we are having area of triangle DON, right, the area of this triangle plus the area of DCN, right, it means this entire triangle including this side of the triangle and this side of the triangle. So we are considering both the sides, this will make entire triangle, right, जिसका हमें प्रूव करना था. So that is equal to the area of right sided triangle. कौन सी है इसमें BOM. So we can write BOM plus second equation में क्या है BAM, right. तो इसमें ये वाली ट्राइंगल हमारे पास आ गई plus the area of this will make the entire area that is BAO. तो हम इस ट्राइंगल की बात कंप्लीट ट्राइंगल, राइट. तो इसका जो एरिया है that is equal to the complete triangle area, that is area DOC plus जो हमने इनिशियली रेड ट्राइंगल हमने मार्क की थी, तो और यहाँ पर हमने इनिशियली जो ग्रीन ट्राइंगल हमने मार्क की थी, दोनों का एरिया इक्वल प्रूव होता है, राइट. सो हेंस द part is proved, right. So another, we are going to proceed to the another part of the solution, that is part number 2. We are marking here, that is the part number 2. Here we are solving this part number 2, right. So part number 2 क्या था, the area of DCB
the DC and B. This triangle, area of DCB. So we are marking with DCB. तो ये जो नीचे वाली जो ट्राइंगल है इसका एरिया इज इक्वल टू द ए ओ ए ओ ए सी बी, राइट। तो इन दोनों में ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉमन। हमने क्या किया था प्रूव अभी, इस फर्स्ट को और इस सेकंड को तो प्रूव कर दिया था हमने कि ये दोनों इक्वल हैं। अब ये जो तीसरा पोर्शन ऐड हुआ है, अगर हम इसमें और इसमें ये ऐड कर दें तो दैट इज ऑल्सो प्रूव, राइट। तो हम इसको ऐसे ही करते हैं। तो हमें ब्लैक और रेड को प्रूव करना है इक्वल, राइट। So for that, since we already proved the area DOC, हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर DOC is equal to area of AOB। इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो कॉमन क्या था इसमें, ट्राइंगल BOC, दोनों साइड में हम ये ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ BOC, राइट, is equal to the area of AOB plus area of BO, राइट। तो जब इसमें हम DOC में इसमें जब ये वाला एरिया ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट एक ब्लैक ट्राइंगल बन जाएगी। So we can write the area of the triangle DCB is equal to the area of, और जब इस 3 नंबर में हम 2 नंबर ऐड करेंगे तो ये रेड ट्राइंगल बन जाएगी। So the red triangle is ACB. That's how we can prove the second part, right? So we can write proved. Now the third portion is DA is parallel with CB और ABC is a parallelogram, ये हमें प्रूव करना था। So we can write the triangle DCB, तो ये वाली ट्राइंगल है ब्लैक ट्राइंगल, and the triangle ACB, तो अभी अभी हमने दोनों का एरिया इक्वल प्रूव किया है। तो हम ये लिख सकते हैं हैव इक्वल एरिया, और ये कहां से लिख सकते हैं हम, से दिस इज फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन वी कैन राइट, एंड दोनों के दोनों किस पे है, सेम बेस पे है, हैविंग सेम बेस, और बेस क्या है, कॉमन, CB इज द कॉमन बेस, ठीक है, जिसपे दोनों ट्राइंगल्स हैं। तो अगर ऐसा है तो द ट्राइंगल्स lies between the same parallel line, राइट। तो हमने उस थ्योरम को कन्वर्स लेकर के चले हैं यहाँ पर, जो सेम पैरेलल लाइन में एग्जिस्ट करती है। अगर वो सेम पैरेलल लाइन में एग्जिस्ट करती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो DA ऊपर वाली जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू AB लाइन, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट। So hence this is the last section proved. So hope you like the solution. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.